बोल न्यूज हेडक्वार्टर। अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज हेडक्वार्टर्स में कहेंगे आपको खुशामदीद। मैं हूं आपके साथ बुशरा हक। मैं हूं अरबाज जहांगीर और मैं हूं महविश निसार। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। बुलेटिन में बात होगी निगरान वज़ीर आज़म का खिताब। भारत आलमी फोरम पर बेनकाब। नून लीग की लंदन में बड़ी बैठक। पाकिस्तान तबाह करने वाले खलंडरे कौन? भारत के ताबूत में आखिरी कील। और शाहीनों का स्क्वाड तैयार। आलमी ताकतें मकबूजा कश्मीर में भारतीय मजालिम बंद कराएं। सलामती काउंसिल को मकबूजा कश्मीर पर अपनी करारदादों पर अमल कराना चाहिए। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब। कहा, पाकिस्तान भारत के साथ भी बराबरी की बुनियाद पर ताल्लुकात चाहता है। मसला कश्मीर की वजह से खित्ते में हालात कशीदा हैं। भारत ने मकबूजा कश्मीर में कर्फ्यू नाफिज कर रखा है और हुर्रियत रहनुमाओं को नजरबंद किया हुआ है। Pakistan believes that region develops together. Therefore, Pakistan desires peaceful and productive relations with all our neighbors, including India. Kashmir is the key to peace between Pakistan and India. The Jammu and Kashmir dispute is one of the oldest issues on the agenda of the Security Council. India has evaded implementation of the Security Council's resolutions which call for the final disposition of Jammu and Kashmir to be decided by its people through UN-supervised plebiscite. Since 5th August 2019, India has deployed 900,000 troops in illegally occupied Jammu and Kashmir to impose the final solution for Kashmir. To this end, India has imposed extended lockdowns and curfews, jailed all genuine Kashmiri leaders, violently suppressed peaceful protests, resorted to extrajudicial killings of innocent Kashmiris in fake encounters, and so-called cordon and search operations, and imposed collective punishments destroying entire villages. Access to occupied Kashmir demanded by the UN High Commission for Human Rights and over a dozen special rapporteurs has been denied by New Delhi. The UN Security Council must secure the implementation of its resolution on Kashmir. निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने कहा कि तमाम हमसाये ममालिक के साथ दोस्ताना ताल्लुकात चाहते हैं, लेकिन पाकिस्तान को अफगानिस्तान से हमलों का सामना है। अफगानिस्तान से कलअदम TTP और दाइश पाकिस्तान में दहशतगर्दाना हमले कर रहे हैं। अफगान अबूरी हुकूमत से ताउन के ख्वाहिशमंद हैं। अफगान हुकूमत के ताउन से दहशतगर्दी का खात्मा मुमकिन है। तरक्की के लिए अमन लाजिम है। अफगानिस्तान के अमन से खित्ते का अमन जुड़ा हुआ है। Peace in Afghanistan is a strategic imperative for Pakistan. Pakistan shares the concern of international community with respect to Afghanistan, particularly the rights of women and girls. Yet we advocate continued humanitarian assistance to a destitute Afghan population in which Afghan girls and women are the most vulnerable, as well as revival of the Afghan economy and implementation of the connectivity projects with Central Asia. Pakistan's first priority is to prevent and counter all terrorism from and within Afghanistan. Pakistan condemns the cross-border terrorist attacks against Pakistan by the TTP, Daesh, and other groups operating from Afghanistan. We have sought Kabul's support and cooperation to prevent these attacks. However, we are also taking necessary measures to end this externally encouraged terrorism. और नवाज शरीफ कहते हैं कि खलंडरों के टोले को मुसल्लत करके हंसते बसते पाकिस्तान को तबाहो बर्बाद कर दिया गया। साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार, आसिफ सईद खोसा और अजमत सईद पाकिस्तान के मुजरिम हैं।
कायद नून लीग की वतन वापसी के प्लान में कोई तब्दीली नहीं हुई। शहबाज शरीफ ने खबरों की तरदीद कर दी। मरियम नवाज कहती हैं नवाज शरीफ का शानदार इस्तकबाल किया जाएगा। लंदन में नवाज शरीफ की ज़ेर क़यादत नून लीग के आला सतह इजलास में कायद नून लीग की वापसी और इंतखाबात की प्लानिंग की गई। नवाज शरीफ की वापसी और इंतखाबात की प्लानिंग। लंदन में नून लीग का आला सतह इजलास। कायद नून लीग की ज़ेर सदारत मीटिंग में शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, इसहाक डार और दीगर सीनियर रहनुमाओं ने शिरकत की। नवाज शरीफ ने कहा कि 2017 के हंसते बसते पाकिस्तान को साजिश के तहत तबाही के दहाने पर ला खड़ा किया गया और फिर एक खलंडरों का टोला मुल्क पर मुसल्लत कर दिया गया। 2018 में झुरलू इलेक्शन हुआ। नवाज शरीफ को इख्तियार से महरूम नहीं बल्कि अवाम को तरक्की के सफर से महरूम किया गया। शहबाज शरीफ की लंदन में मीडिया से बातचीत। कहा नवाज शरीफ फिर पाकिस्तान आएंगे और तरक्की का सफर फिर शुरू होगा। 16 माह की कारकर्दगी पर वजाहत दी कि 4 साल मुल्क को तबाह किया गया। ये सब कुछ रातों रात ठीक नहीं हो सकता था। चेयरमैन PTI ने गालम गलोच के अलावा कुछ नहीं किया। झुरलू इलेक्शन हुए और नवाज शरीफ का मैंडेट छीन लिया गया और ये नवाज शरीफ को, मैंने पीछे भी कहा कि नवाज शरीफ को इक़्तिदार से मालूम नहीं किया गया बल्कि पाकिस्तान के करोड़ों आवाम को खुशहाली और तरक्की के सफर से महरूम किया गया। उसी सफर को दोबारा शुरू करने के लिए मियां नवाज शरीफ पाकिस्तान तशरीफ ला रहे हैं। सरमायाकारी लाएंगे और पाकिस्तान की जो यूथ है, नौजवान नस्ल है, बच्चे और बच्चियां, उनकी तालीम, इलाज और उनके रोजगार के लिए इंशाअल्लाह दिन रात काम करें। महंगाई दिहाइयों में अपनी कम तरीन सतह पर थी और कारोबार, सरमायाकारी अपने अरूज पर थी। गाली गलोच के अलावा कुछ नहीं सिखाया। निगरान वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी कहते हैं निगरान हुकूमत इंतखाबी मुहिम के दौरान किसी पार्टी की हिमायत नहीं कर रही। किसी से इम्तियाजी सलूक रवा नहीं रखा जाएगा। बिलावल भुट्टो के दिल में कोई रंजिश है तो उन्हें इजहारे हक राय का हक है। नवाज शरीफ की वापसी से निगरान हुकूमत का कोई ताल्लुक नहीं है। फवाद हसन पर पीपल्स पार्टी के एतराज़ का जवाब देते हुए कहा कि फवाद हसन 35 साल सिविल सर्वेंट रहे हैं। साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ का जो मामला है वो अदालतों का मामला है और कानून का मामला है कि वो आएंगे तो फिर क्या होगा, इसका ताल्लुक अदालतों से है। मुझे नहीं पता कि वो हिफाजती जमानत लेकर आएंगे। मेरा नहीं ख्याल है कि निगरान हुकूमत का इस वास्ते से कोई ताल्लुक है। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को पाकिस्तान की बहुत बड़ी सियासी जमात के सरबराह हैं। अगर कोई दिल में कोई रंजिश हो, शिकायत हो तो ये उनका हक है। 35 साल तक फवाद हसन जो है वो सिविल सर्विस में रहे। उन्होंने अकबर भुट्टी के साथ भी काम किया है, मक्सी साहब के साथ भी काम किया है, मुख्तलिफ हुकूमतों में काम किया है। जो सिविल सर्वेंट हैं बेचारे, उनके पास ये अख्तियार नहीं होता कि वो किसके लिए काम करें, किसके लिए ना करें। ये एक आईनी और कानूनी हुकूमत है। हम लोग किसी ट्रक पे चढ़ के इक़्तिदार पे कब्जा नहीं किया। इलेक्शन एक्ट 2017 के तहत ये बहुत वजाहत से लिखा है कि 54 दिन कम अज़ कम इलेक्शन की जो मुहिम है इंतखाबी मुहिम, उसके लिए जमातों को मिलेंगे। जनवरी के आखिरी हफ्ते में आम इंतखाबात का ऐलान होगा पूरे मुल्क में एक साथ। आसिफ जरदारी कहते हैं कि इंतखाबात में लेवल प्लेइंग फील्ड ना मिली तो एहतजाज करेंगे। चौधरी शुजात ने कहा कि PP खदशात ठीक साबित हुए तो एहतजाज में साथ देंगे। दोनों रहनुमाओं की मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। इसी बारे में मजीद बात कर लेते हैं। बोल की रिपोर्टर फातिमा शराजी हमारे साथ लाइन पर मौजूद है। फातिमा, बताइएगा मजीद क्या बातचीत हुई है? जी बिल्कुल, मुस्लिम लीग काफ के सरबराह चौधरी शुजात और साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की मुलाकात हुई है। उस मुलाकात में काफी अहम फैसले किए गए हैं। मुलाकात आसिफ अली जरदारी चौधरी शुजात हुसैन से कहा कि अगर तमाम सियासी जमात को लेवल प्लेइंग फील्ड ना दी गई तो हम खसूसी तौर पर बहुत ही एहतजाज करेंगे। इसके अलावा उन्होंने कहा कि हल्का बंदियां हों या ना हो मगर इलेक्शन का इनेकाद बर वक्त यकीनी होना चाहिए। सियासी अदम इस्तेहकाम खत्म करने के लिए इलेक्शन नागज़ीर है। और आसिफ अली जरदारी ने मजीद कहा कि इलेक्शन ताखीर होने से सियासी अदम इस्तेहकाम पैदा हो सकता है और हम चाहते हैं कि माशी तौर पर मुल्क मजबूत हो। चौधरी शुजात ने इसके हवाले से कहा कि मुस्लिम लीग काफ का पहले दिन से मौक़िफ़ है कि मुल्क है तो इलेक्शन है, अदरवाइज हम किसी भी रहनुमा इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी जहांगीर तरीन कहते हैं हमें लेवल प्लेइंग फील्ड की कोई शिकायत नहीं, सबके साथ एक रवैया होना चाहिए। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में उनका कहना था कि इलेक्शन का इनेकाद मुल्क की सालमियत के लिए नागुज़ीर है। इलेक्शन में मुनज़्ज़म और भरपूर तरीके से हिस्सा लेंगे।
तारीख दी, इलेक्शन कमीशन का राइट है तारीख देना, ठीक है 90 दिन की एक हद है आइन में, मगर ये एक स्पेशल सर्कमस्टांस है कि जो नया सेंसस है उसके रिजल्ट अब आ रहे हैं। हमारी नई जमात है, हम फील्ड में निकले हैं, अभी तक कोई ऐसी बात हमें लेवल प्लेइंग फील्ड में हमें कोई शिकायत नहीं है, हम खुश हैं, इंशाअल्लाह ताला काम सही चलेगा। और जहाँ तक अहलियत की बात है 5 साल पर लिमिट होगी। इलेक्शन में तमाम लोगों को इक्वल मौका मिलना चाहिए, बराबरी का। उसके बाद जो आवाम जिसको पसंद करता है उसको आगे आना चाहिए। और इंशाअल्लाह ताला हम सब लोग मिल के सब चीज़ों को पूरा करेंगे, पाकिस्तान के लिए मेहनत करेंगे, पाकिस्तान की आवाम की खिदमत के लिए मेहनत। और अभी आपको बताएंगे हिंदुत्व का एजेंडा दुनिया को जंग के शोलों की तरफ धकेल सकता है। खालिस्तान के रहनुमा को भारतीय एजेंटों ने शहीद किया। भारत ने बतौर रियासत कैनेडियन सरजमीन पर कैनेडियन शहरी को कत्ल किया। निगरान वज़ीर आज़म का शदीद रद्द-ए-अमल, कहा हरदीप सिंह मासूम थे इसलिए उन्हें शहीद कह रहा हूँ। भारत ने जो किया उसकी जितनी मजम्मत की जाए कम है। बलूचिस्तान में कत्ल गारत में भारत मुलव्विस है। भारतीय नेवी का हाजिर सर्विस अफसर पाकिस्तान में कैद में है। भारत मकबूजा कश्मीर में मजालिम ढा रहा है। कनाडा ने हरदीप सिंह के कत्ल में भारतीय साजिश को मंतकी अंजाम तक पहुंचाने का फैसला कर लिया। कैनेडियन हुकाम का कहना है कि कत्ल से मुतालिक गुफ्तगू में भारतीय सिफारतकार भी शामिल थे। भारत की जानिब से फिजिकल और टेक्निकल दोनों सबूत मिल चुके हैं, जबकि मामले पर अमेरिकन नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जैक सलवान ने भारतीय प्रोपेगेंडा मुस्तरद कर दिया है। मामले पर कनाडा की मुकम्मल हिमायत का ऐलान किया है। कनाडा ने हरदीप सिंह के कत्ल में भारतीय साजिश को मंतकी अंजाम तक पहुंचाने का फैसला कर लिया है। कैनेडियन हुकाम का कहना है कि कत्ल से मुतालिक गुफ्तगू में भारतीय सिफारतकार शामिल थे। और कनाडा में भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के हाथों हरदीप सिंह के कत्ल के खिलाफ पेशावर में सिख बरादरी ने एहतजाज किया। मुजाहिरीन ने भारत के खिलाफ नारेबाजी, मुजाहिरीन ने हुकूमत से मामला सफारती सतह पर उठाने का मुतालबा किया। शाहीनों का ₹1.02 कमी हुई। डॉलर 291 रुपये 76 पैसे पर बंद हुआ। रुपया मुस्तहकम होने के बाद दीगर करेंसियों की कीमत में भी गिरावट का रुझान है। यूरो की कीमत 318 रुपये से कम होकर 315 रुपये हो गई। पाउंड की कीमत 4 रुपये कम होकर 371 रुपये हो गई। सऊदी रियाल में 30 पैसे कमी से 78 रुपये 77 पैसे पर ट्रेड हो रहा है। डॉलर की हकीकी कीमत 260 रुपये है। अमरीकी करेंसी स्टॉक करने की वजह से ज्यादा महंगी हुई। निगरान वज़ीर तजारत गौहर एजाज की प्रेस कॉन्फ्रेंस, उन्होंने कारोबार जल्द बंद करने की तजवीज़ की भी मुखालिफत कर दी। कहा हुकूमत के पास सरप्लस बिजली मौजूद है। 60 रुपए का डॉलर आज के दिन रीर के हिसाब से 90 की रीर है, 290 का डॉलर है। रीर के हिसाब से आज का 260 होना चाहिए, इन्फ्लेशन के हिसाब से 200 होना चाहिए। हमने इनको दिया है कि अपना वक्त 9 से 6 जो है अपने कारोबार का वक्त देखें कि किस तरह, और इनको दोबारा से इनको टाइम दिया। पहले हम 9 सितंबर को बंद करने जा रहे थे 6 बजे, फिर इनको वक्त दिया है। एक प्लांट यहाँ चाइना का थरकूल का आइडेंटिफाई करें, 1320 मेगावाट का लग गया है, चाइना का चल पड़ा, राइट। उसको 1320 मेगावाट को हम व्हीलिंग के थ्रू डायरेक्ट इंडस्ट्री के लिए एलोकेट करवा, और वो जो उसकी कॉस्ट ऑफ एनर्जी है, उसकी कॉस्ट ऑफ एनर्जी के बाद हम जो आपकी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है जो केई है, उसको एक व्हीलिंग चार्ज देंगे। उस व्हीलिंग चार्ज के तहत आपको वो बिजली दिलवाएंगे, जिसके अंदर से हम आपको सबको ये तमाम जो उसके गवर्नमेंट के कैपेसिटी चार्जेस और गवर्नमेंट के जो टैक्सेस हैं या गवर्नमेंट की जो भी उसके अंदर स्ट्रक्चर्स हैं, उन सब से मैं आपको बाहर निकालने चाह रहा हूँ। आप लोगों को एम्पावर करना पड़ेगा अपनी लीडरशिप को, ताकि वो एग्रीमेंट करे, क्योंकि LNG की जो कैपेसिटी है वो भी जा रही है, हुकूमत ले जाएगी। वी हैव टू अंडरस्टैंड नेचुरल गैस नहीं है, पहले थी। और नैब हुकाम ने मजीद 18 रेफरेंसेस का रिकॉर्ड एहतसाब अदालतों में जमा करा दिया। 80 रेफरेंसेस में से 44 रेफरेंसेस का रिकॉर्ड अब तक एहतसाब अदालतों में जमा करवाया जा चुका है। वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ, यूसुफ रज़ा गिलानी और साबिक सदर आसिफ अली जरदारी के खिलाफ तोशाखाना रेफरेंस का रिकॉर्ड भी जमा करवा दिया गया। चेयरमैन नैब नज़ीर अहमद ने DG-FIA मोहसिन एहसन भट्ट से मुलाकात की है, जिसमें एहतसाब के अमल पर तबादला ख्याल किया गया। तफ्तीश और दीगर उमूर से मुताल्लिक़ अहम शोबों में ताउन पर बातचीत की गई। नैब और DG-FIA का अहम शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक हुआ। सुप्रीम कोर्ट के नैब तरमीम केस के हालिया फैसले पर भी गुफ्तगू हुई। पीपल्स पार्टी ने लतीफ़ खोसा की पार्टी रुकनियत मुअत्तल कर दी। तर्जुमान पीपल्स पार्टी का कहना है कि लतीफ़ खोसा की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी की रुकनियत भी मुअत्तल कर। जनरल सेक्रेटरी नैयर हुसैन बुखारी ने कहा है कि 1 हफ्ते कबल लतीफ़ खोसा को पीपल्स पार्टी के शो कॉज नोटिस जारी किए गए थे।
कल लड़ाई और आज भाई भाई। हाफिज नईमुर रहमान और कामरान टिसोरी में सुलह हो गई। गवर्नर सिंध अमीर जमात इस्लामी कराची से मिलने इदारा नूर हक जा पहुंचे। दोनों गुज़श्ता रोज होने वाली बयानबाजी को गलतफहमी का नतीजा करार दे रहे हैं। तख्ती लगाने का कोई शौक नहीं है, मैं क्योंकि पहुंच चुका हूँ, आए हम सब मिल के इफ्तिदा कर लेते हैं। गवर्नर साहब का ओहदा देखिए, एक ऐसे पार्क में जो टाउन की डोमेन में आता है उसको बाईपास करके इफ्तिदा करने पहुंच गए। तो मैं हाफिज नईमुर रहमान साहब को भी अपने साथ लेके जाऊंगा और हम साथ खड़े होके इंशाअल्लाह ताला इसका इफ्तिदा भी करेंगे। एक गलतफहमी थी, उसका इजाला हो गया। कोई गलत चीज़ किसी जगह हो जाती है, उस पर हम सॉरी भी करते हैं। हाफिज नईमुर रहमान साहब का टेलीफोन आया और उन्होंने मुझे कहा कि आप ये इफ्तिदा ना करें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।